Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to solve exponential and logarithmic functions exercise with you. It's from the chapter Continuity and Differentiability. We are done till 5.3 I guess, yes, and now we will continue with 5.4. See, continuity and differentiability for those who are new, it is basically continuity is defined by limit, like uh, for a function to be continuous at some point, you need to check just two conditions. Firstly, limit should exist at that point, and second, the value of function at that point should be equal to the limit. This is the basic definition for continuity. And for differentiability, you have to check just this definition: limit of h tending to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. This should finitely exist both from right hand derivative and left hand derivative. What is right hand derivative? um, when we take the limit of h, so when we take it from 0 tending to 0 from negative side, that is 0 minus something which is very less than 0, and right hand derivative is something which is very greater than 0, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि 0.00001 इस टाइप से. And if that exists finitely, then the function is differentiable. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल बताई थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं होती. डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. लेकिन वाइसा वर्सा होल्ड नहीं करता है. मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी. और लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट डज नॉट मैटर कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शंस कंटिन्यूअस से ही बनते हैं. बिना कंटिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आ सकती. ठीक है, तो अभी हम इस एक्सरसाइज पे चलते हैं. See, firstly, let me explain you the graph of log x and e to the power x. See, our general log x graph is this, as it is drawn here. If it is not said, then we generally take log x to be equal to ln x. Why ln x? Ln x basically represents log base e to the power x. मतलब जैसे कि अगर हमको दिया हुआ है कि log x और अपने को बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जनरल बेस e मान के चलते हैं और log e को अपन लोग ln बोलते हैं. और उसकी जगह अपन लोग दूसरा जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं जिस बेस को, वो होता है 10. तो दो चीज बहुत ज्यादा काम आती है, इसको ध्यान रखना. पहला तो है ln x जिसमें log ऑफ e होता है, और दूसरा होता है log ऑफ 10x जिसमें अपना बेस 10 होता है. सो ये बेसिक सा log x का ग्राफ होता है. जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट होता है 1,0, 1,0. ठीक है. और दूसरी बात, और क्या है इसमें बताने को, हाँ, और दूसरी बात, जैसे जैसे एक्स टेंडिंग टू 0 होते जाता है, ये नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता. सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉग एक्स का ग्राफ नेगेटिव साइड पे डिफाइन नहीं होता है कभी भी. और जैसे जैसे ये एक्सटेंडिंग टू 0 पे जाता है पॉजिटिव साइड से, वैसे वैसे ये इन्फिनिटी की तरफ जाता जाता है, ऐसे जाता जाएगा. ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा एक्सटेंडिंग टू 0 पे. ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट टच करता है 1,0. ठीक है, तो ये बेसिक सी लॉग एक्स की अंडरस्टैंडिंग थी. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज यू मस्ट नो दिस थिंग. उसके बाद ये log x का ग्राफ है. अपन लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे y इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में. दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स. ओके, y equal to x. This is y equal to x. Now what you have to do, you have to just take the reflection of log x graph in the line y equal to x, and you can simply get graph of e to the power x. Nothing else you have to do. You have to just take the reflection of y equal to ln x in y की power x and in y equal to x, and you can easily get your graph. So let me do it. So it will be something like this. It will start from here, will intersect the y-axis at 0,1, and will go like this. So this point as drawn here, it is 0,1. Okay, so like ln x, since ln x becomes asymptotic for y-axis,
Similarly, it goes on for x-axis. Like when we approach negative x-axis, it never touches x-axis, but it becomes like parallel to x-axis at x equal to minus infinity, and it touches the y-axis at 0, 1. So this is the graph of e power x. ओके, तो ये e पावर x का ग्राफ होता है. बाकी अपने को अगर कोई और बेस दिया हो, जैसे कि 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, उनका ग्राफ भी ऐसे बनेगा, बस वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा. अगर अपने को e की वैल्यू पता करनी है तो e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो 3 की पावर x का ग्राफ और 2 की पावर x का ग्राफ भी इसके आजू और बाजू ही होगा, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. मतलब 0,1 वाला पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपन ने ग्राफ बनाया है ln x को रिफ्लेक्ट करके बनाया है. 2 की पावर x का ग्राफ बनेगा ln ऑफ बेस 2x को रिफ्लेक्ट करके, तो वो ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन बनेगा ऐसे ही. तो ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी. फिर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो देख लेते हैं. लॉग ऑफ समथिंग, लेट्स से p टू द बेस a. अगर उसमें से अपने को बेस हटाना है तो अपन लोग ऐसे लिखेंगे, log p अपन जो बेस में है उसका log, और अपन फिर बेस कुछ भी चुन सकते हैं. लेट्स से अपन ने बेस b ले लिया या कुछ भी ले लिया, ठीक है. बेस अपन कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन अपने को इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा. फिर एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के अंदर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो अपन लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, log b p प्लस log b q, ऐसे करके अपन लोग लॉग को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे आता है जो लॉग का, अगर किसी लॉग के अंदर जो वैल्यू उस पर स्क्वायर लगा होगा तो वो स्क्वायर बाहर आ जाता है. स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 log p हो जाएगा. तो ऐसे इसको ऐसे ध्यान रखना, अगर स्क्वायर की जगह कुछ और भी दिया होगा अपनी पावर में तो वो भी बाहर आ जाएगा. जस्ट रिमेम्बर इट लाइक दिस. फिर log b x by y अगर दिया होगा तो उसको कैसे करेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हो जाता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन हो जाता है. इसमें हो जाएगा log of x माइनस log of y, ठीक है. उसके बाद e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है. फिर क्वेश्चन सारे, चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 5.4, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को डिफरेंशिएट करना है e की पावर x अपॉन sin x को. क्या करना है, d by dx ऑफ e पावर x डिवाइड बाई sin x, ठीक है. तो अपने को उसको डिफरेंशिएट करना है. कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, हम इसको ऐसे करेंगे कि d by dx ऑफ e पावर x अपॉन sin x इस टाइप से दिया हुआ है ना. इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अपने को पता है ये p अपॉन q के फॉर्म का है. p अपॉन q में क्या होता है, अपॉन तो जो होता है उसको स्क्वायर हो जाता है, और न्यूमरेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, ठीक है. डिवाइड बाय sin स्क्वायर x, डिवाइड बाय sin स्क्वायर x, ठीक है. तो ये इसका सिंपल सा आंसर होगा. इसमें अपने को एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन लोग उसको साइंस को एक से डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि साइंस को एक जीरो नहीं हो सकता, वरना ये अपना फंक्शन नीचे चला जाएगा. साइन एक्स जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो होता है एन पाई पे, लेकिन क्योंकि साइन एक्स जीरो होता है, साइन एक्स होता है जीरो एन पाई पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइन को डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो अपन एक्स को एन पाई ले सकते हैं. सो एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, ठीक है. एन पाई, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया. सिंपल सी बात समझ में आ गया. बस इसमें एक्स को अपन लोग एन पाई ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर साइन एक्स जीरो हो जाएगा. साइन एक्स जीरो हो जाएगा तो फंक्शन इनफिनिटी को चला जाएगा, वो अपने को चाहिए नहीं, इसलिए अपन इसको ऐसे करेंगे. फिर सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है. सेकेंड क्वेश्चन में बोला है e पावर साइन इनवर्स x. So now we have to differentiate e times sin of -1 x. इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये पावर में है, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे चेन रूल लगा देंगे. मैंने बताया था आपको कल क्या,
जब भी कंपोजिट फंक्शन दिए रहते हैं तो अपन लोग चेन रूल से सॉल्व करते हैं। चेन रूल में क्या होता है, आउटर फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अपन लोग अंदर जाएंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ई की पावर एक्स बाहर वाला फंक्शन है, तो पहले ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ई पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²). मतलब मैं क्या करूंगा, e की पावर साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²। सो इट वुड बी 1/√(1 - x²। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, इस पे पावर हाफ लगा देते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज है, बस अपने को जो दिया है वहां से अपने को चालू करना है। जैसे कि यहाँ पे ई के पास साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ था, तो वहां ही चालू करके अपन लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। इसमें दिया था ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर जाएगा न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इस टाइप से अपन लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इसमें x की वैल्यू अपने को पता है, क्योंकि अपने को आंसर में साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स का मतलब हुआ कि मेरी x की वैल्यू सिर्फ x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स है वो सिर्फ -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता है। बहुत सिंपल चीज है, अपने को बस इसको सॉल्व करते जाना है, एंड देन वी आर डन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला है, ई पावर एक्स क्यूब। तो ई पावर एक्स क्यूब कैसे करेंगे, वापस चेन रूल लगाएंगे, d/dx ऑफ ई पावर एक्स क्यूब। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना कैसे करेंगे, पहले वापस आउटर फंक्शन को, आउटर फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। तो ये चीज कॉपी कर देंगे वापस, ई पावर एक्स पावर में क्यूब। ठीक है, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ई की पावर में एक्स क्यूब है तो अपने को एक्स क्यूब को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। ठीक है, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन dx ही होता है, तो वो d/dx से कट जाएगा, तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, 3x² को आगे ले जाते हैं, 3x² ई की पावर एक्स क्यूब, ई पावर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। चले, तो ऐसे सिंपली आराम से हो जाएगा, बस बाहर वाले फंक्शन से चालू करो और अंदर आते जाओ, तो अपना ये चीज सॉल्व हो जाएगी। तो थर्ड वाला हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाले में दिया हुआ है साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर -x, ई पावर -x। ओके, सी दिस चैप्टर इज नॉट टिपिकल एज सच, बस अपने को मतलब कैलकुलेशन करते समय पेशेंट रहना पड़ेगा, वरना फिर आंसर गलत हो जाएगा। बाकी बेसिक अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है देन वी कैन इजीली डू दिस। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है बाहर साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो देखेंगे कॉस ऑफ tan इनवर्स ई पावर -x, जो भी दिया हुआ है उसी को वापस कॉपी कर देंगे। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दिया साइन का, अब अपन लोग अंदर आएंगे। अंदर क्या दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है tan इनवर्स ई की पावर -x। तो देखो, क्योंकि tan इनवर्स में दिया हुआ है तो दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट नहीं, 1/1 + x²। सो अपन इसको डिवाइड कर देंगे 1 + x² से। यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह दिया हुआ है अपने को ई की पावर -x, तो हो जाएगा 1 + ई की पावर -x का स्क्वायर, इट वुड बी ई की पावर -2x, ई पावर -2x। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी अपन ने क्या किया है, साइन का किया है, फिर tan इनवर्स का किया है, अभी ई की पावर -x का भी करना है, तो ई की पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई की पावर -x का होगा ई की पावर -x, फिर -x का -1।
सो ये अपना फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा। बस अपने को इसको ऐसे करना है कि मतलब ढंग से लिखा जाए ताकि दिखने में आसान हो। तो अब इसको ऐसे लिख देंगे, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स को आगे ले आएंगे तो हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर माइनस 2x 1 प्लस ई पावर माइनस 2x। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। Let's move to next question on the next page. Let's do question number 5. Question number 5 में क्या बोला है? Log of cos of ex. Log of cos of e power x. तो सिंपल है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? पहले log का होता है 1/x, तो हो जाएगा 1 अपॉन log के अंदर जो x है, ये पूरी चीज x बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos of e power x। फिर cos of e power x रिप्रेजेंटेशन, ये वापस प्रोडक्ट रूल लिख जाएगा यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल नहीं, सॉरी, cos of e power x है ना, तो ये cos के अंदर कुछ x है, तो cos x का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, हो जाएगा माइनस साइन ऑफ e पावर x मल्टीप्लाइड बाय e पावर x का रिप्रेजेंटेशन वो e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो अब इसको ढंग से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ e पावर x साइन ऑफ e पावर x डिवाइड बाय cos ऑफ e पावर x, cos ऑफ e पावर x। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला है? e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर ठीक है प्लस e पावर x क्यूब e पावर x क्यूब and so on up to e पावर x 5 तक है। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके अपन लोग जाएंगे e पावर x 5 तक। तो प्लस एक टर्म मैं छोड़ रहा हूँ, फाइनल टर्म क्या होगा? e पावर x पावर 5। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपली कर देंगे, एक एक का अपने को बोला जो डिफरेंशिएशन होता है वो एडिशन पे टूट जाता है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका डिफरेंशिएशन, सबका डिफरेंशिएशन करके ऐड कर देंगे, सिंपल सा है। सो e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e पावर x का हो जाएगा e पावर x, e पावर x स्क्वायर क्या हो जाएगा? पहले तो e पावर x स्क्वायर इज e पावर x स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 2x, फिर प्लस e पावर x क्यूब क्या होगा? e पावर x क्यूब, फिर x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे e पावर x4 का क्या हो जाएगा? e की पावर x की पावर 4 का क्या हो जाएगा? e की पावर x की पावर 4 तो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 4x की पावर 3। ठीक है, प्लस e की पावर x की पावर 5 कैसे होगा? e की पावर x की पावर 5 को करने के लिए अपन लोग करेंगे e पावर x की पावर 5 का एज लिख देंगे, x की पावर 5, फिर करेंगे x की पावर 5 का, वो हो जाएगा 5 टाइम्स x की पावर 4। चले एक मिनट, तो इस तरीके से अपन लोग करेंगे इसको, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, क्या
कि अपने को बाहर से चालू के अंदर तक डिफरेंशिएशन करते हुए जाना है। और चूंकि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था कि e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस e पावर x क्यूब प्लस डैश डैश अप टू e पावर x वाई, तो अपने को बस पहले e पावर x करना था, तो डी बाई डी एक्स एडिशन में टूट जाता है, तो बस अपने को बाहर चालू करते हुए अंदर तक जाना था। बाकी क्वेश्चन वॉज एक्चुअली सिंपल, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है रूट ऑफ e पावर रूट x। सो लेट मी ड्रॉ द रूट e पावर रूट x। चलो मैं रूट बना देता हूँ इससे। ये बन गया e का रूट और ये बन गया रूट x का। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। अपने को करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? रूट ऑफ e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन करना है ना अपने को। देखो अब इसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें अपन मानते हैं कि ये फंक्शन इक्वल टू वाई है। ठीक है, फिर क्योंकि अपने को रूट दिया हुआ, अपने को रूट से मजा नहीं आ रहा, तो अपन लोग रूट हटाने की कोशिश करेंगे। रूट कैसे हटाएंगे? वाई का स्क्वायर कर देंगे। वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ई पावर रूट एक्स। ई पावर रूट एक्स। ठीक है, फिर कितना आ गया? अपन लोग क्या करेंगे? अपन लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स से क्या होगा? ई की पावर समथिंग है तो ई की पावर समथिंग तो रहेगा ही। ई की पावर वो समथिंग तो रहेगा ही। फिर रूट एक्स से क्या हो जाएगा? रूट एक्स का हो जाएगा डिवाइड बाई, अपने को पता है रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट का बना देते हैं। ये एक रूट और ये दूसरा रूट। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं किया मैंने बस डिफरेंशिएट किया इसको। अभी आगे चलते हैं। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा? अभी क्योंकि मेरे को जब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो मेरे को 2y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर रूट एक्स। मतलब ये चीज मैं कॉपी कर दूंगा वापस। ये चीज। ठीक है, डिवाइड बाई 2y, तो डिवाइड बाई 2y होगा, तो यहाँ पर तो जाएगा 4, और y की जगह ये चीज वापस हो जाएगी ई पावर रूट एक्स। तो देखो नीचे दिया हुआ है रूट ई की पावर रूट एक्स, ऊपर दिया हुआ है ई की पावर एक्स। तो आप समझ गए क्या करना है? ई की पावर रूट एक्स, तो एक रूट कट जाएगा, तो ऊपर बस एक रूट आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे फाइनल आंसर में मेरे को बस यहाँ पे रूट बनाना है, तो मैं तो यहाँ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे होगा रूट, सॉरी, देखो यहाँ पे होगा रूट ई की पावर रूट एक्स ऑन 4 रूट एक्स। ठीक है, और नीचे एक वाई आ जाएगा। वाई क्या है? वाई है अपना अंडर रूट ऑफ ई, मतलब ये पूरा। तो यहाँ पे मैं वाई लिखता हूँ, वाई है मेरा। वाई क्या था? मैंने वाई किसको माना था? वाई मैंने इसको माना था, दिस थिंग। इसके अंदर है ई, और इसकी पावर में है रूट एक्स। ये मेरा वाई था, तो मैंने इससे वाई से डिवाइड कर दिया। तो बस अब मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल गया। मैं काम करता हूँ, मैं इस रूट एक्स को भी अंदर ले जाता हूँ, इस वाले रूट एक्स को, ताकि मेरा आंसर ढंग का दिखे। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देखो यहाँ पे रूट पूरी पे है, मैं लगाना भूल गया शायद। ये रूट पूरे पे है। ठीक है ना? फिर अब टेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं वापस। तो हम लोग क्या करेंगे? अपन लोग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर रूट एक्स अपॉन दिस होल थिंग। ई पावर रूट एक्स डिवाइड बाई 4। 4 के अंदर पूरा एक बड़ा सा रूट लगा देंगे, और उस रूट के अंदर क्या आ जाएगा? उस रूट के अंदर आ जाएगा एक्स ई पावर रूट एक्स। ठीक है, तो बस अब मैं रूट और लगा देता हूँ। आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स, और इस पूरे पे रूट, और ई की पावर रूट एक्स।
ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया बस इसमें, क्योंकि मेरे को रूट ई दिया हुआ था, तो मेरे को रूट ई को हटाना था। मैंने चाहता कि मेरे आंसर में मैं रूट ई से डील करूँ, वरना फिर मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा जाता। इसलिए मैंने रूट ई की पावर रूट एक्स को वाई मान लिया, फिर मैंने वाई स्क्वायर मान के इसको पूरे को सॉल्व किया। फिर मेरे को आखिर में वाई एलिमेंट करना था, तो मैंने आखिर में वाई की वैल्यू डाल दी। फिर मैं इस रूट एक्स को अंदर ले गया, जिसको ये सब समझ में नहीं आया वो देख लो। मैं इस रूट एक्स को अंदर ले गया, तो ये रूट एक्स को अंदर ले जाऊंगा तो वो बन जाएगा एक्स, एक्स को बाहर निकालूंगा तो वो बन जाएगा रूट एक्स। ठीक है, तो बस उस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप समझ में आ गया होगा, ऐसा एज सच टिपिकल नहीं था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा? इसमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का होता है 1/x, तो हो जाएगा 1 लॉग एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। देखो क्वेश्चन सिंपल है, आपको बस डील करना आना चाहिए कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर अपने को लॉग एक्स दिया हुआ, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा 1/log x मल्टीप्लाइड बाय 1/x। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, इसको कंबाइन करके लिख देना है। कंबाइन करके लिखेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 1/x log x। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन सिंपल है, बस अपने को मैथमेटिक्स आनी चाहिए क्वेश्चन की। ठीक है, फिर अगले में क्या दिया हुआ है? cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन सीधे सीधे करेंगे क्या, अपन लोग cos x अपॉन log x को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे, फिर y इक्वल टू cos x अपॉन log x लेंगे। फिर cos x अपॉन log x में cos x अपॉन log x क्वेश्चन वाला फॉर्म दिया हुआ है, तो अपन लोग d by dx ऑफ क्वेश्चन वाला फॉर्म लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, फिर माइनस माइनस log x का हो जाएगा 1/x टाइम्स cos x एज इट इज। ठीक है, डिवाइड बाई log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। फिर इसको ढंग से लिख देते हैं, इक्वल टू माइनस log x sin x माइनस cos x by x cos x by x डिवाइड बाई log x का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप समझ में आया होगा। इसमें भी कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ हाँ, इसमें एक चीज अपन लोग लेके चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था जब मैं लॉग डिफाइन कर रहा था कि लॉग के लिए x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, x लेस देन 0 पर लॉग की कोई वैल्यू नहीं होती, लॉग x लेस देन 0 पर डिफाइन ही नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में है cos ऑफ log x प्लस e पावर x। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, x ग्रेटर देन 0 मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, तो पहले वापस बाहर चालू करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, इट वुड बी माइनस ऑफ sin ऑफ log x प्लस e पावर x। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई log x का हो जाएगा क्या, log x का हो जाएगा 1/x प्लस e पावर x का क्या हो जाएगा, e पावर x का e पावर x ही रहेगा। समझ में आया? तो बस अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देंगे। तो लिखेंगे अपन लोग, लिख देंगे इक्वल टू माइनस 1/x को आगे ले जाएंगे, 1/x प्लस e पावर x। ये तो मैं बस ढंग से दिख जाए इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ
log of x plus e पावर x। सिंपल है, तो ये इसका अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें हर जगह आपको लिखना पड़ेगा x कैसे नहीं लिखोगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व कर लिए। तो सी, it is not tough at all. You have to just know the logic of differentiation and you can easily do these things. Like, मतलब ये बहुत अटेली सिंपल है यार, इसमें आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना है, लिटरली जस्ट वी हैव टू know how to differentiate and differentiation breaks on addition, subtraction, and we have to know the product rule, we have to know the quotient rule, and all. Nothing else we have to do. Got that? So I think 5.4 समझ में आ गई होगी।